Hello students, today we will read chapter 5 of our English book and the name of our chapter is The Hungry Emperor. Emperor means a person who rules on people or who is the king of a place. Emperor को हम हिंदी में सम्राट भी बोलते हैं. So now we will read our chapter. Everybody will start reading with me. A long time ago, there was an emperor in China who was very fond of eating new and different kinds of food. There was an emperor, and where was it? In China. So that emperor was very fond. That means he used to like, he was very interested. He used to like eating different kinds of food. That means he was a foodie. A foodie means ऐसा व्यक्ति जिसको खाना बहुत पसंद हो, जिसको कुछ खाना बहुत पसंद हो. So the emperor was fond of eating new and different kinds of food. He always demanded new and tasty food. उनको हमेशा नया खाना या कुछ टेस्टी खाना होता था. Sometimes he behaved like a child and demanded new variety of food. And just like a child, just like how a small child demands for food, sometimes he demands for biscuits, sometimes chocolates, sometimes cookies and whatnot. Just like a child, the emperor used to behave like a child and used to demand variety of foods. That means he used to demand different types of foods. His courtiers were much worried of his nature, especially the cook. Courtiers means people who are working with him or the people who stays with him. So उनके साथ जो cook था वो बहुत ज़्यादा चिंता करता था. He tried hard to please the emperor by serving different kinds of dishes, but the emperor was never satisfied and sent the cook away. So जो cook था वहाँ पे, जो emperor का cook था, he tried hard to please the emperor. That means वो बहुत कोशिश करता था जिससे वो emperor को impress कर सके या उनको खुश कर सके. कैसे खुश कर सकता था? उनके आगे डिफरेंट काइंड के फूड्स लेके जाते थे, उनको अलग अलग टाइप के टेस्टी खाना उनके आगे वैरायटी रखी जाती थी जिससे एम्परर खुश हो सके. बट एवरी टाइम एम्परर वॉज नेवर सेटिस्फाइड एंड सेंट द कुक अवे. और हर बार कुक को वापस भेजा जाता था. Many cooks came to please the emperor by their food, but all were sent away sooner or later. मतलब बहुत सारे शेफ आए थे वहाँ, बहुत सारे कुक मतलब कौन होता है? जो खाना बनाता है. तो बहुत सारे कुक आए थे वहाँ पे, लेकिन सब कभी ना कभी जल्दी या बाद में कभी ना कभी वापस भेज दिए गए थे क्योंकि एम्परर सेटिस्फाइड नहीं था. The emperor was very sad. One day when he was walking in his garden, a man came up to him and said, "Your Majesty, I have come to offer my service as a cook." The emperor was very happy. He asked the stranger, "Do you know what is the best and tastiest food in the world?" So one day what happened? The emperor was very sad. मतलब वो emperor बहुत sad थे, उदास थे. तो वो अपने गार्डन में वॉक कर रहे थे. जब वो वॉक कर रहे थे तो एक आदमी आया उनके पास और आदमी ने आके बोला, "योर मैजेस्टी", मतलब योर ऑनर. जो भी किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, उनको योर मैजेस्टी, योर ऑनर बोल के उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है. सो मैन वेंट टू द एम्परर एंड सेड, "आई हैव कम टू ऑफर माई सर्विस एज अ कुक." मतलब मैं आपके यहाँ पे अपनी सेवा देने आया हूँ एज अ कुक. तो जब एम्परर को ये सुनने में आया, जब एम्परर को पता चला कि वो मैन कुक के लिए यहाँ पे आया है, तो वो खुश हो गया और उन्होंने पूछा कि बताओ मुझे वर्ल्ड का सबसे टेस्टीएस्ट फूड क्या है. द न्यू कुक सेड, "योर मैजेस्टी, इट इज़ द ऑनियन बिस्किट नूडल सूप." नए कुक ने बताया
कि ये अनियन बिस्किट नूडल सूप सबसे टेस्टी फूड है. The emperor was surprised as he had never heard such type of dish. और emperor को सरप्राइज हो गया emperor जब उसने सुना कि नए कुक ने क्या डिश का नाम बताया. वो emperor वो सुन के सरप्राइज था because he had never heard such kind of dish. He said, I wonder what it tastes like. Make it for me today and I shall see if I agree with you or not. तो एम्प्रर ने कभी सुना नहीं था उसके बारे में. तो एम्प्रर ने बोला मेक इट फॉर मी टुडे, मेरे लिए आज ये सूप बनाओ एंड देन आई विल टेल यू अगर आप सही बोल रहे हो या गलत. मतलब आई अग्री विथ यू और नॉट. मैं वो सूप पीने के बाद बताऊंगा. द न्यू कुक्स नेम वॉज येन. तो नए कुक का नाम क्या था? येन. ही वॉज वेरी वाइज सो ही मेड द सूप टेस्टलेस. The emperor had the soup but said nothing. तो मतलब जो येन था वो बहुत वाइस था, बहुत सरल स्वभाव का था. तो उसने जो सूप बनाया वो टेस्टलेस था, मतलब बिना किसी टेस्ट के था. टेस्टलेस यानी बिना किसी टेस्ट के, बिना स्वाद के. तो एम्परर ने कुछ नहीं बोला सूप लेने के बाद. येन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड. और येन ने ऐसा दिखाया जैसे उसको कुछ समझ नहीं आया. He politely said, I hope your majesty knows that everyone had different tastes. What I like may not be what you like. तब फिर येन ने बोला कि जो मेरी पसंद हो जरूरी नहीं वो आपकी पसंद हो. The emperor was very angry. He said, I do not care about other people. Tell me what is the best food for an emperor. फिर जब येन ने ऐसा बोला कि जो मेरी पसंद हो ज़रूरी नहीं वो आपकी पसंद हो, तो राजा को क्या आ गया? गुस्सा आ गया. एम्परर वॉज वेरी एंग्री. फिर उन्होंने बोला कि मुझे दूसरों से मतलब नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल. मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि एक राजा के लिए सबसे बेस्ट फूड क्या है. येन सेड, द बेस्ट फूड इज हंगर योर मैजेस्टी, but it cannot be cooked in the palace. तो फिर येन ने बोला कि बेस्ट फूड है हंगर, सबसे अच्छा खाना है भूख, बट वो पैलेस में नहीं बन सकता. क्योंकि भूख तो कोई डिश थोड़ी ना है. भूख को आप बना थोड़ी ना सकते हो. भूख तो अंदर से लगती है ना. तो भूख अंदर से आती है. तो येन ने बोला कि द बेस्ट फूड इज hunger. The emperor was ready to go anywhere to sample hunger. Soon the two of them set out. Yen knew that the emperor was hungry, so he took him away where food was being sold. तो राजा को देखना था भूख कैसी होती है, हंगर कैसा होता है. तो राजा बाहर निकल गया, पैलेस से बाहर चले गया. और फिर एम्परर और येन दोनों बाहर गए. येन को पता था कि राजा यानी एम्परर भूखा है, तो वो ऐसी जगह ले गया राजा को जहाँ पे खाना बेचा जा रहा था. ही केप्ट द एम्परर वॉकिंग टिल दे रीच अ डेजर्टेड प्लेस. मतलब वो चलते गए कहाँ तक? टिल दे रीच्ड अ डेजर्टेड प्लेस. डेजर्टेड मतलब कोई खाली जगह, कोई सुनसान जगह. The emperor sat down, gasping for breath. I need food, he said. और emperor यानी राजा थक के बैठ गया और वहाँ पे वो बैठ के क्या बोला? मुझे खाना चाहिए. I need food. Yen had some dry biscuit in his bag and he gave them to the emperor. और येन के पास उसके बैग में एक बिस्किट का पैकेट था और उसने एम्परर को बिस्किट का पैकेट दे दिया. The emperor was so much hungry that he kept on eating the dry biscuits. I have never had such tasty biscuits before. You must tell me where you got them, the emperor said. और जब राजा को जब बहुत भूख लगी हुई थी, यानी एम्परर को बहुत भूख लगी हुई थी और येन ने अपने बैग से बिस्किट दिया, तो एम्परर
खाता रहा और खाता रहा और रुका ही नहीं। और जब वो खा रहा था तब राजा ने येन को बोला कि मैंने इतने टेस्टी बिस्किट्स आज तक नहीं खाए, तो मुझे बताओ ये टेस्टी बिस्किट्स कहाँ से लाए। येन said, Your Majesty, these are the same biscuits that I used in the onion biscuit noodle soup this morning. What do you know why they taste so good now, Your Majesty? अब येन ने बोला है कि ये वही बिस्किट है जो आज मैंने सुबह सूप के दौरान सूप में डाला था और तब आपको पसंद नहीं आया था। The emperor realized that the food tastes best when one is hungry. मतलब चाहे कैसा भी खाना हो, जब आपको भूख लगी हुई होती है तब आपको वो खाना टेस्टी ही लगता है। Now the king had to know that hunger is the best sauce. He promised that he would be a better ruler. और अब उस किंग को ये एहसास हो गया, नाउ द किंग रियलाइज्ड कि हंगर ही एक सबसे बेस्ट फूड है। और अब उस किंग ने ये प्रॉमिस किया कि अब वो एक अच्छा एम्परर बनेगा और एक अच्छा राजा बनेगा। द एम्परर अपॉइंटेड येन एज अ गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इन चाइना। आफ्टर दैट द एम्परर बिकेम अ गुड रूलर। और फिर जब गवर्नर को येन से ये सीख मिली, तब गवर्नर ने जब एम्परर को ये येन से सीख मिली, तब एम्परर ने येन को गवर्नर बना दिया। क्या कर दिया? वहाँ का एक प्रोविंस का एक गवर्नर बना दिया। और उसके बाद जो राजा था वो वहाँ पे बहुत अच्छे से शासन करने लगा, वहाँ पे अपने एम्पायर का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा। सो स्टूडेंट्स, what do you understand from this chapter? The moral of the chapter is the food doesn't matter if that's tasty or not, if it is cooked very tasty or not, if the food is different or not. The food always tastes same. We should not make excuses on food. We should not dislike our food, because when a person is hungry, he knows the food is well cooked and the food is the best food in the world. So we should not avoid or disrespect what we get. You should always respect how much food you get. And आपको हमेशा आपके खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आपकी मम्मी, दादी, नानी या कोई भी आपके लिए कुछ खाना बना के लाता है, तो आपको उनको बोलना चाहिए, थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो टेस्टी फूड। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया। खाना कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो।